Hello friends, hope you are all doing well. Welcome you all in my session. Today we will start new chapter, some application of trigonometry. हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा क्लास में जो है स्वागत है। आज हम जो है नया चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हम स्टार्ट करेंगे with some basic concepts. After that I will start 9.1. In previous class I have given homework. Please check your solution. Here this is in your screen. Exercise 8.4, that is sin theta minus 2 sin cube theta 2 cos cube theta minus cos theta equal to 10. We have to prove that. From LHS हम LHS लिया है sin theta minus 2 cos sin cube theta 2 cos cube theta minus cos theta. यहाँ पर sin theta दोनों में कॉमन है, ऊपर में न्यूमरेटर में अंश में जो है sin theta कॉमन है और हर में जो है cos theta कॉमन, तो दोनों में कॉमन लिया है तो हमको मिला है 1 minus 2 sin square theta and we will get we got in denominator 2 cos square theta minus 1. So sin theta minus 1 minus cos square theta plus 2. क्यों? क्योंकि 2 अंदर इंटू हो जाएगा, 2 cos square theta minus 2 तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाता है। तो उसी तरह cos theta का डिनोमिनेटर में भी 2 cos square theta minus 1, तो sin theta इंटू cos का 2 cos square theta minus 1 और cos theta 2 cos square theta minus 1 जो है दोनों 2 cos square theta minus 1 2 cos square theta minus 1 जो है कैंसिल हो जाता है और sin theta by cos theta will get tan theta. That is equal to RHS. Okay friends, I have given some additional question also. That is question number 1, sin A plus cos A by sin A minus cos A plus sin A minus cos A by sin A plus cos A equal to 2 sin square minus cos square A. So as usual I took from LHS that is sin A plus cos A by sin A minus cos A plus sin A minus cos A by sin A plus cos A. इसको हम जो है रैशनल नंबर की तरह एलसीएम ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको मिला है sin A plus cos A the whole square sin A minus cos A the whole square. We applied the formula a plus b the whole square or a minus b the whole square. After expanding this one, we get that is 2 sin theta minus cos theta cancel, sin square plus cos square 1 and cos square plus sin square, that is 1. That is 1 plus 1 that is 2 by as usual that is denominator we will write that is sin square minus cos square. जैसे हम लोग यहाँ पर जो है sin square plus cos square का फॉर्मूला जो है यूज किया है 1 होता है, दोनों में 2 बार है ये बार तो 2 लिखा है 2 by sin square minus cos square है, that is equal to RHS. और एक क्वेश्चन है नंबर 2, cot A plus tan A equal to sec A cosec A. इसमें भी जो है LHS लिया है cot A plus tan A. We applied the formula cot A that is cos A by sin A plus sin A by cos A tan A का, फिर इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो फिर इसका बाद in place of sin square plus cos square we write that is 1, that is we get 1 by sin A by cos A, तो 1 by sin A that is cosec A और 1 by cos A that is sec A equal to RHS. फॉर्मूला साइड में दिया हुआ है. लास्ट क्वेश्चन है that is 1 minus cos A by 1 plus cos A equal to cosec square minus cot A the whole square. ये हम लोग प्रूफ करना है. As usual I took from LHS that is 1 minus cos A by 1 plus cos A, फिर उसी तरह रैशनलाइजिंग कर दिया डिनोमिनेटर का. देखिए परिमेयीकरण किया है 1 plus cos A को हम 1 minus cos A 1 minus cos A सेम लिखा है, तो ऊपर में डिनोमिनेटर में we got 1 minus cos A the whole square और नीचे में a plus b a minus b का फॉर्मूला a square b square, that is 1 minus cos square. In place of 1 minus cos square I wrote that is sin square लिखा है 1 minus cos square के जगह में. फिर इसी तरह जो है आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 1 by sin A cos A हो गया और cos A by sin A cot A हो गया, that is equal to RHS. इस प्रकार जो है होमवर्क हम लोगों ने ये होमवर्क का क्वेश्चन है हम लोग कर दिए हैं. Okay friends, let us start today's session with some basics of this chapter, that is application of trigonometry. त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग का हम कुछ बेसिक्स हम लोग सीखेंगे, इसका बाद ये इस चैप्टर को हम लोग 9.1 से स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. कम ऑन फ्रेंड्स. Friends, this is a very new chapter for you, the trigonometry applications ka. In this chapter we will study some ways in which trigonometry is used in the life around us. Okay, it is used in various fields like astronomy. The astronomers use this calculate the distance between the earth and planets and stars. Trigonometry used also a geography subject also, and navigation. It is used to construct the maps, determine the position of the islands related to longitude and latitude.
मित्रों, त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है आसपास का अपना जीवन से हम लोग जुड़ा हुआ है। इसका प्रयोग जो है खगोल की, पृथ्वी से, ग्रहों से, तारों की दूरियां जो है हमको ज्ञात करने का मदद करता है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। और ये भूगोल और नौचालन में भी जो है हमको मानचित्र बनाने में, मैप्स बनाने में जो है हमको मदद करता है। और देशांश अक्षांश की मदद से जो है कौन सा द्वीप कहाँ पर है यह हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग को जो है इसको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, okay, there may be a vertical tower or tree, anything is there, आप कुछ भी देख सकते हैं वहां पर। उसी तरह आप यहाँ पर देखिए, अगर ऑब्जेक्ट नीचे है, आप ऊपर है, यहाँ पर से आप देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये अवनमन कोण है, ये वुनियन कोण है। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप ऊपर से जब नीचे देखते हैं दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये ओरिजेंटल लेवल है, ये क्षैतिज रेखा है। ये आपको इमेजिनरी लाइन बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ इमेजिनरी लाइन। ओके, आप देख लीजिए यहाँ पर जब आप नीचे हैं, आप किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, आप ऊपर हैं जब नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। वुनियन कोण जब हम ऊपर देखते हैं और जो ऊपर से नीचे जब देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन और अवनमन कोण। तो ये बेसिक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर याद है आपको, आप ये क्वेश्चन आराम से जो है 9.1 कर सकते हैं। पहले ड्राइंग अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन को, यू हैव टू रीड प्रॉपरली वर्ड बाय वर्ड सेंटेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स व्हाटएवर हाइड इन द क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जो हम लोग डायग्राम बना देंगे तो हम साइन थीटा यूज होगा या कॉस थीटा यूज होगा, टैन थीटा यूज होगा रेशियो के हिसाब से, तो हम जो है आराम से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वंस अगेन इफ यू सी द लो लेवल टू हाई लेवल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। देन व्हेन यू सी द अपर लेवल टू लोअर लेवल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण, हिंदी में अवनमन कोण कहते हैं। तो फ्रेंड्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक स्नैप ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, let us proceed toward the question number 1. I read in English, this is in your screen. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope if the ground level is 30 degree. हिंदी में सर्कस का एक कलाकार जो है एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिकार जो से बांधा हुआ है। और यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी के द्वारा बनाया गया कोण जो है 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए सब कुछ दिया हुआ है, हम लोगों को जो इसको करना है। ठीक है, करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है मैंने लिख दिया। वट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन आई रोट हियर ओनली। ओके, सी हियर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 सॉल्यूशन। वट एवर गिवन, ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल। ये पोल का हाइट दिया हुआ है, ए बी खंबे की ऊंचाई है, ए सी इक्वल टू 20 मीटर। डोर की जो लंबाई है वो जो है रोप का लंबाई जो है 20 मीटर दिया हुआ है एंड थीटा इज गिवन 30 डिग्री। ओके, नाउ हम लोग कौन सा अभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सब दिया हुआ है और लेकिन यहाँ पर जो है कौन सा यूज करना है हमको ये कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ पर एच दिया हुआ है, हमको क्या निकालना बोला है, टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल को हम लोग को देखिए, हाइट ऑफ द पोल जो है हम लोग को ये भी है तो ये निकालना है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस इज बेस थीटा इज हियर देयरफॉर इट इज बेस एंड दिस इज पी एंड दिस इज एच। क्योंकि थीटा यहाँ पर है, आधार ये है, ऊंचाई है और ये कर्ण है। तो हम लोग अभी यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये दोनों का रिलेशन क्या होगा, पी और एच। This is a right angle triangle. Okay, you know, in right angle ABC. Okay, now sine 30 degree equal to P by H, that is AB by AC. समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC
सी से, जस्ट राइट। अभी यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है sin 30 इक्वल टू AB बाई AC, क्यों? P बाई H है, P बाई H फार्मूला है। P बाई H भी हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई, यहाँ पर देखिए sin 30 1/2 वैल्यू है, क्यों? क्योंकि इसका हम लोग टेबल में देखे हैं sin 30 1/2, इन प्लेस ऑफ sin 30 विल राइट 1/2। अब ये भी क्या दिया हुआ है? नो, वी डोंट नो, ए बी हैव टू कैलकुलेट। ओके, AC क्या दिया हुआ है? यस, डोर की जो लंबाई है 20 मीटर, रोप द लेंथ ऑफ द रोप कितना दे दिया? 20 दे दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20/2 इक्वल टू AB। ओके फ्रेंड्स, नाउ 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, दैट इज AB इक्वल टू 10 मीटर। ये पोल का हाइट है। देयरफॉर वी विल राइट हियर हेंस द हाइट ऑफ पोल is 10 मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। Once again friends, see here, it's very easy, or whatever given you write first. AB is the height of the pole. लेट ले सकते हैं, लेट AB is the height of the pole. AB खंबे की ऊंचाई है, माना AC इक्वल टू 20 मीटर लेंथ रोप दिया हुआ है और AC 20 मीटर डोर की लंबाई दिया हुआ है। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होना है। अब ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि यहाँ से एंगल थीटा जो है यहाँ पर है। तो sin 30, क्यों sin 30 यूज किया? क्योंकि P बाई H का बारे में बात किया, तो लंब बटे कर्ण जो है हमेशा sin 30 में होता है। तो इसमें sin 30 की वैल्यू क्या है? टेबल से 1/2, और इसका वैल्यू रख दिया AC का वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, AB इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इट्स वेरी इजी, आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आई रीड इन इंग्लिश फर्स्ट। ये ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, इन दिस स्क्रीन यू वॉच द स्क्रीन। ये ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. हिंदी में आंधी आने से जो है एक पेड़ जो है टूट जाता है, और टूटा हुआ बाग जो है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जाके जो है जमीन में चुने लगता है, और उसका जो साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का जो पाद बिंदु है, वो जो पेड़ का तना है, वहां से जो है उसका दूरी जो है, शिखर का दूरी जो है 8 मीटर दिया हुआ है। तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये इस तरह का जो है हम जंगलों में देख सकते हैं, पेड़ जो है आधा टूट के जो है टच हो जाता है, वहां पर एक एंगल बनाता है। तो अभी यहाँ पर फुल टोटल पेड़ के कितना ऊंचाई है, जो खड़ा है और जो गिरा हुआ है, दोनों की ऊंचाई जो है वो पेड़ का होता है। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया। ओके, हम आगे बढ़ते हैं इसको करने के लिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सी हियर व्हाटएवर गिवन इन द क्वेश्चन आई रोट हियर, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ लिख दिया है। सबसे पहले डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पेड़ जो है सीधा था, पहले आंधी के कारण जो टूट के जो यहाँ पर टच हो गया है, ये 30 डिग्री बना रहा है। देखिए जमीन, ये जमीन है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा बना हुआ 30 डिग्री, दिस इज गिवन। ओके, द ट्री बेक्स इन दिस पार्ट, ओके, देन बेंड टुवर्ड्स द लैंड एंड टचेस द ग्राउंड at 30 degree. Okay, it makes 30 degree. Now let AB be the tree whose part AC breaks and touches the ground at D. That is I wrote here. माना ये भी एक पेड़ है जो AC के हिस्से पर टूटकर जो है जमीन में D पर जो है चुभता है, और जो है D पर जो है 30 डिग्री बनाता है। यहाँ पर BD इक्वल टू जो है 8 मीटर दे दिया है। We have to calculate the length of the whole tree. पूरे पेड़ का ऊंचाई हम लोग को निकालना है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, कैन राइट हियर, इन राइट एंगल ट्रायंगल that is CBD, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, यहाँ पर हिंदी में समकोण त्रिभुज CBD से हिंदी में लिख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो वेरी इजी। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8 मीटर दिया हुआ है। तो ये गिवन है। तो देखिए नाउन टू अनाउन, वी हैव टू प्रोसीड नाउन टू अनाउन। दिस इज नाउन, ये हम लोग जानते हैं। B और H हमको ये निकालना है। तो B और H में कौन है?
हाँ यस यू आर करेक्ट, cos थीटा दैट इज cos 30 डिग्री, तो दैट इज b by h, यू कैन राइट b by h। फिर इसके बाद आप b क्या है BD और h क्या है CD, आप लिख सकते हैं इस तरह। तो cos 30 क्या है वैल्यू, यस √3/2, √3/2 का वैल्यू जो है टेबल से हम लोग लिखेंगे, और BD कितना दिया हुआ है 8 by CD, ये पेड़ जो है यहां पर टच वाला है, CD हम लोग मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CD √3 इक्वल टू 16, 2 8 जा 16, देन CD इक्वल टू 16 by √3। ठीक है फ्रेंड, दिस इज ये ऐसे रहना दीजिए, CD मिल गया। अब हमको क्या चाहिए BC चाहिए। नाउ इसका क्या रिलेशन है P और B कौन है, यस 10। तो इन राइट ट्राइंगल सिमिलरली in right angle triangle CBD tan 30 degree, P by B, tan 30 means P by B, that is P means BC by BD। ठीक है फ्रेंड, now tan 30 1 by √3, correct, 1 by √3। now BC by BD, BC we don't know, BD that is you know 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 1 जा 8 by √3 इक्वल टू BC, और BC इक्वल टू 8 by √3। दिस इज 1 and this is 2। now see friends, it's very very important। तो यहां पर दोनों का वैल्यू आ गया, BC भी आ गया और DC भी आ गया, और पेड़ क्या है that is AB। now AB equal to AC plus BC। now AB equal to, you can write AB equal to AC plus BC। ओके, तो यहां पर तो पेड़ नहीं है, ये तो इमेजिनरी लाइन है, पेड़ तो यहां पर है, तो ये पीस तो यहां टच है, यू रोट हियर AC इक्वल टू CD। अगर हम लोग लिखा है तो AC इक्वल टू CD यहां पर लिखा हुआ है, तो हम AC की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग CD प्लस BC। नाउ CD, व्हाट इज CD हियर 16 √3, 16 by √3 प्लस BC 8 by √3, एलसीएम ले लीजिए √3। ओके, नाउ 16 प्लस 8 दैट इज 24 by √3, रैशनलाइजेशन तो क्या मिल गया हम लोग, 24 √3 by 3, 3 1 जा 3 8 जा 24, दैट इज 8 √3, दैट इज AB। हेंस द height of tree is 8 √3 मीटर। हिंदी में हता पेड़ की ऊंचाई 8 √3 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, सो वेरी इजी, आप कर सकते हैं। देखिए और एक बार, यहाँ पर पेड़ जो यहाँ पर टूटा हुआ है, टच हुआ है, इसका मतलब दोनों सेम है और 30 डिग्री में टच हुआ। तो वट एवर गिवन है आई रोट हियर, सी प्रॉपरली, थीटा भी दिया हुआ है, दैट इज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इन राइट एंगल ट्राइंगल CBD, तो CBD से cos 30 क्यों लिए, क्योंकि B by H इसी में cos में है, तो cos 30 इक्वल टू B by H, दैट इज BD by CD। वैल्यू रखने के बाद CD की वैल्यू मिल गया 1 मिला। फिर इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल CBD, क्योंकि यहां पर हमको ये चाहिए, अभी परपेंडिकुलर चाहिए, तो P by B, क्यों B है 30 डिग्री। नाउ tan 30 इक्वल टू P by B, दैट इज BC by BD। तो tan 30 की वैल्यू टेबल से 1 by √3 और ये क्रॉस में लगाने के बाद BC, हमको यहाँ पर BC मिल गया। नाउ ये दोनों का वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से, क्योंकि हम यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 2 से, दोनों का वैल्यू रखा हुआ है। नाउ डिनोमिनेटर सेम, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा √3, ऊपर का डिनोमिनेटर हम लोग प्लस कर दिए, तो 24 by √3, तो √3 को हम लोग क्या कर दिया, हम लोग यहाँ पर इसको परिमेयकरण किया है, रैशनलाइजेशन कर लिया हम लोग, यहाँ पर इंटू कर दिया, तो क्या होगा √3 3 हो गया, 3 1 जा 3 8 जा 24, 8 √3। तो हैंस द हाइट ऑफ द ट्री इज 8 √3, पेड़ की ऊंचाई जो है 8 √3 मीटर आपको मिल गया है।
तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। Okay friends, let us proceed towards the question number 3. I will read in English first. This is in your screen, see properly. A contractor plans to install 2 slides for children to play in a park for a children below age of 5 years, and she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and inclined at the 30 degree to the ground. Whereas the elder children, she wants to have a steep slide at the height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? Friends, हम हिंदी में भी पढ़ते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलने पट्टी जो है, फिसलने वाला जो पट्टी है वो लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए भी और बड़े बच्चों के लिए। 5 वर्ष के जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर है और 30 डिग्री कोण बनाता है जमीन से, और जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचा जो है चढ़ने का जो सीढ़ी चढ़ते हैं वो 3 मीटर ऊंचा है, और इसको जो फिसल मट्टी का जो एंगल है भूमि से जो बनता है 60 डिग्री कोण बनाते हैं। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी जो है लंबाई क्या होना चाहिए निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, लेट अस डू, कम ऑन। ओके दोस्तों, व्हाट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई ड्रॉ दिस वन टू सेव द टाइम। ओके, समय को बचाने के लिए जो है मैंने इधर पर जो व्हाट एवर गिवन जो भी दिया हुआ है प्रश्न में मैंने यहाँ पर बना दिया है। देखिए सबसे पहले केस 1 में बोलते हैं कि स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, तो उनका जो हाइट है यहाँ पर से सीढ़ी चढ़ेंगे तो 1.5 हाइट है, क्योंकि बच्चे गिरने का डर है इसलिए 1.5 मीटर का दिया हुआ है, ये यहाँ से फिसलते हैं। तो जो फिसलन पट्टी का जो स्लाइड का जो एंगल है जमीन का साथ अर्थ का साथ जो है 30 डिग्री बनाता है। उसी तरह यहाँ पर थोड़ा बड़े बच्चे हैं तो हाइट ज्यादा है 3 मीटर, यहाँ से चढ़ते हैं और यहाँ से फिसलते हैं, इनका जो डिग्री है 60 डिग्री, क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा है और ये थोड़ा सपाट है। तो यहाँ पर हाइट दे दिया 1.5 मीटर और यहाँ हाइट दे दिया 3 मीटर। हम लोग दोनों जो है simultaneously will do. Okay, now in right triangle ABC, ये 90 डिग्री है ABC। ओके, नाउ यहां पर दिया हुआ P और ये H है, क्योंकि ये गिवन है या अननोन है। P और H में कौन है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का जगह यहां पर दे दिया है 30, तो साइन 30 इक्वल टू P बाई H, दैट इज P मीन्स AB by AC. Sin 30, what is the value of sin 30? Yes, 1/2. 1/2 टेबल से आप लिख लीजिए। AB का वैल्यू कितना है? 1.5 by AC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC 1.5 into 2 that is 3 मीटर। तो यहाँ पर जो है इसका 3 मीटर आ गया। इससे बच्चों का जो है फिसल पट्टी की जो लंबाई है 3 मीटर है। ठीक है, हैंस भी लिख सकते हैं, hence whatever asked. Now here in this case ये बड़े बच्चों के लिए है, इसलिए यहाँ पर 60 डिग्री है और हाइट जो है 3 मीटर है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है P और H का, तो क्या लिखेंगे? इन राइट ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल PQR, यहाँ में भी राइट एंगल ट्रायंगल लिखना है, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ समकोण त्रिभुज ABC से हिंदी में लिख लीजिए। यहाँ पर भी समकोण आप लोग लिख लीजिए, यहाँ सेम उसी तरह PQR रखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 60 इक्वल टू P बाई H, दैट इज P मीन्स PQ बाई PR। ठीक है फ्रेंड, साइन 60 का टेबल से आप लोग याद कर लीजिए, √3/2 करेक्ट, √3/2 इक्वल टू P मीन्स 3 by, that is PQ means 3 P by PR, cross multiplication, that is PR √3 equal to 6, PR equal to 6 by √3 दोनों से ऐसा कर दिया इक्वल टू 6 √3 by 3 1 3 2 6, that is 2 √3 मीटर। तो यहाँ पर PR का वैल्यू जो वैल्यू है वो मिल गया है 2 √3 मीटर। ओके फ्रेंड्स, नाउ इधर 2 √3 मिला है और वहां पर 3 मीटर दिया हुआ है, तो यहां पर भी हैंस द लेंथ ऑफ द स्लाइड, अतः वो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है आप लिख सकते हैं। इट्स वेरी इजी, आप देख सकते हैं वंस अगेन, आप केस 1 में केस 2 में यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, साइन थीटा P और H के लिए, साइन थीटा यूज किया AC, सेम इसी तरह P H, साइन 60 P बाई H, वट एवर आस्क्ड
ओके, नाउ दे आस्क्ड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, फिसल पट्टी का लंबाई, तो यहाँ पर वो मिल गया है। तो लास्ट में जो है एनसीयू आप लिख लीजिए, ठीक है। अतः फिसल पट्टी की लंबाई दोनों केस में ये है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। हियर इन दिस इन योर स्क्रीन, आपका स्क्रीन में देख लीजिए और इंग्लिश में पढ़ते हैं हम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। हम करते हैं, देखिए ध्यान से। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा है उसी तरह लिख दिया है। यहाँ मीनार है, ये वाला टावर है, ये टावर है, यहाँ से टावर का टॉप में देख रहा है तो वहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बेसिक बताना टाइम है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अर्लियर। नाउ 30 डिग्री, हियर इट इज 30 डिग्री। नाउ the length, the distance between the tower and this the basic point, the point is 30 meter. Okay, तो 30 मीटर का दूरी पर दे, वट एवर गिवन इन द आई रोट हियर। ओके, ए बी इक्वल टू 30 मीटर, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल आई विल टेक इन फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, हिंदी में समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। तो ए बी सी से आपको क्या है, यहाँ पर बेस दिया हुआ 30 डिग्री है, दिस इज बेस बिकॉज थीटा इज हियर, दैट्स व्हाई आई टुक बेस हियर, दैट इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अभी पूछा क्या है, हाइट ऑफ द टावर, दे आस्क्ड हाइट ऑफ द टावर, सो आई टुक बेस एंड पी, पी बी। नाउ पी बी मीन्स पी बाई बी, व्हाट इज देयर, tan 30, tan 30, okay, very good, tan 30 degree equal to P by B, that is P means BC, BC by AB, ठीक है फ्रेंड्स। tan 30 from table 1 by root 3, 1 by root 3 जो टेबल से जो है उसका वैल्यू जो है 1 by root 3 है, और BC और AB कितना दिया हुआ है 30, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 by root 3 इक्वल टू BC, ओके, और BC इक्वल टू, और या BC इक्वल टू 30 बाई रूट 3 से दोनों साइड इंटू कर दिया तो हमको मिल जाता है 30 रूट 3 बाई 3। नाउ 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, दैट इज 10 रूट 3 मीटर। तो BC क्या है, BC हाइट है, हाइट ऑफ द टावर, ओके। नाउ देयरफॉर BC इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर। Hence we can write here, hence the height of the tower, the height of the tower is 10 root 3 meter. हिंदी में अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 10 रूट 3 मीटर है। Okay friends, now once again see here properly, whatever asked in the question, according to question I wrote here, let BC be the height of the tower. तो हाइट ऑफ द टावर है BC है, और मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया हम लोग, BC मान लिया, और AB जो है वहां पर जो डिस्टेंस दिया हुआ है 30 मीटर। Okay, now theta already given 30 degree. In right angle triangle ABC, I took why I took tan 30. Yes, P by B. This the condition P by B. Why? We have to calculate the height. The base is given. आधार दिया हुआ है, हम लोग को लंब प्राप्त करना है, तो लंब और आधार में कौन है, tan 30 है, तो tan 30 लंब बटे आधार है, तो हम क्या कर दिया, P by B लिख दिया, BC by AB। तो tan 30 का वैल्यू 1 by रूट 3 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने बाद BC इक्वल टू 10 रूट 3 मिला है। तो फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर लिए। इसका थोड़ा सा मैंने होमवर्क भी दिया हुआ है, आप जो है लास्ट में जो है होमवर्क दिया हुआ है चेक करना है, और इसी का जो नंबर चेंज करके हम दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। Okay friends, I have given some questions for homework for you, ठीक है। Here this is in your screen, see properly and practice properly, you will get good marks, okay। Okay friends, many thanks for watching my session. We will meet again. Till then, practice constantly, stay safe and stay healthy. Thank you, bye bye.